ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ بڑے انٹرسٹنگ مہمان موجود ہیں. آپ بھی اپنی کہانی ہم سے کوئی بھی شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ لمبی ہیں, ہسبینڈ کی سیم ہائٹ کی ہیں, یا قد کم ہے, آپ کے حساب سے ٹھیک ہے, لیکن گھر والوں نے ہمیشہ آپ سے کہا کہ جی تمہاری ہائٹ جو ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہے. کس طرح کی ہائٹ کی لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں اور کتنے مارکس ان کے لیے ہوتے ہیں, اس کے لیے تمام لوگ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو جو ہمارے مائنڈ کی سائنس کے ساتھ کچھ کریں گی, ہماری مائنڈ سائنس اسپیشلسٹ اینڈ ایکسپرٹ عروج معیز ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. سب کی مائنڈ سائنسز نا انہوں نے صحیح کر دی ہے. اب اگر آپ کو عروج کوئی لمبی ہائٹ پہ کچھ بولے گا تو اس کو تو آپ ٹھیک کر دو گے, بہت لمبی ہے نا, لیکن لمبے پہ میرے خیال میں اتنا نہیں بولا جاتا. یہ ہم پوچھیں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. ڈاکٹر قمر الزمان ہمارے ساتھ ہیں, چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, اور ان کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچپن سے شاید ماں باپ کسی حد تک کنسرن ہوتے ہیں, لیکن ایک خاص عمر میں جا کے جب ٹین ایج ہو جاتی ہے جب فکر مند ہوتے ہیں, تو شروع سے کس طرح کا رجحان ہونا چاہیے, یا اس کی کوئی سائنس ہے, جینیٹکس ہے, جو کچھ بھی اس میں انوالوڈ ہے, اس کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہے جی, یہ تو خالی صوفہ ہے, اس کو ہم خالی صوفہ کہتے ہیں, اور ان کے خالی صوفے کے برابر میں ہمارے ساتھ فراز موجود ہے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اچھا فراز, اب تو میرے خیال میں آپ کو میڈیا میں سبھی لوگ پہچان چکے ہوں گے, ہے نا, مگر میں پھر بھی یہ صوفہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کون ہے, اگر آپ نہیں جانتے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ نہیں جانتے, اب تو کافی لوگ جانتے ہیں. اب تو لوگ آپ کو ویسے بھی ہوتا ہے کبھی کہ لاہور میں یا کراچی میں جب کوئی گھوم رہے ہو تو, ہاں کچھ لوگ ہیں جو مطلب میرے سرکل میں یا باہر کے لوگ بھی کچھ پہچان جاتے ہیں کہ یار آپ تو اچھا. ہاں اچھا. اور فراز کی اپنی ہائٹ بھی ماشاءاللہ بہت لمبی ہے. کیا ہائٹ ہے؟ 6'3". 6'3". اور بیگم کی ہائٹ کتنی ہے؟ بیگم کی 5'7" ہے, 5'6" ہے شاید. اوکے, تو یہ ٹھیک کمبینیشن ہے. ہاں مجھے لگتا ہے. کافی بہتر ہے. اچھا, اس وقت جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی تو کیا آپ کو یہ چیز انٹرسٹ کرتی تھی کہ لڑکی کی ہائٹ لمبی ہونی چاہیے, کیونکہ سنس یو آر ٹو ٹال یور سیلف؟ بالکل بالکل نہیں, میں بہت کنسرن تھا, اور میں یہی دیکھتا تھا کہ یار میں جس سے شادی کروں وہ ایٹ لیسٹ ہیل پہن کے بھی میرے یہاں تک بھی اگر آ جاتی ہے تو بات بن گئی. تو وہ اچھا ہے کہ ہیل نہیں بھی پہنی ہوئی ہوتی تو بھی گزارا ہمارا چل جاتا ہے. میں یہ پرابلم نہیں ہوتی میں بہت چھوٹی لگ رہی ہے, میں بہت لمبا لگ رہا ہوں, ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ دونوں ہی بڑا ٹھیک رہتا ہے ہمارے ساتھ, ٹھیک رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ہائٹ کا مسئلہ نہیں ہے, شکر. اچھا, لیکن یہ کنسرن ہوتا ہے آپ کی فیملی میں بھی لمبے لمبے لوگ ہیں؟ ہاں, میرے جو فادر تھے ان کی بھی ہائٹ اچھی تھی, میرے جو دادا تھے ان کی بھی ہائٹ اچھی ہے, میری سسٹر سب ٹال ہیں. اوکے. اور تو ٹال سسٹرز کی جب شادی ہو رہی تھی, میرے خیال میں وہ تو کافی آپ سے ایج میں ڈفرینس ہے, آپ چھوٹے ہیں, چھوٹے ہوں گے اس وقت جب ان کی شادی ہوئی تو, لیکن کچھ یاد ہے کہ جب وہ لمبی ہائٹ کا کچھ ہوتا تھا کہ لڑکے کی ہائٹ لازمی دیکھنا؟ بالکل 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 ایسا ہے, اور الحمدللہ میرے جتنے بھی برادر ان لاز ہیں وہ سارے ہی ٹال ہی ہیں. ٹال ہی ہے. اوکے, تو ٹال لڑکی ایک انٹر تو ہوئی ہے, ابھی دیکھتے ہیں اس کو یہاں بلاتے ہیں. اور لیکن اس سے پہلے عروج ذرا آپ بتائیے, یہ ہمارے یہاں آپ دیکھتی کیا ہے, لوگوں کے یہ مائنڈ سائنس کے حوالے سے کیا سوچ ہے ہائٹ کو لے کر؟ اچھا, اگر ہم صرف لڑکوں کی بات کریں تو جو لڑکوں کی پریفرنس ہے تو لڑکے اتنا ہائٹ کو نہیں دیکھتے, دے ڈونٹ کیئر مچ اباؤٹ اٹ, انلیس ان کو ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہماری شادی کے بعد ہمارا انٹیمیسی کا جو لیول ہے وہ بہت شارٹ ہائٹڈ لڑکی سے اتنا اچھا نہیں ہوگا, لائک وی کانٹ ہولڈ ہینڈ, یا لٹرلی ان کا اچھا مقصد ہوتا ہے جو جینڈر ہے, میل جینڈر وہ ون ٹریک ہے, وہ لٹرلی اسی طرح سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے سے بہت چھوٹی لڑکی ہوگی تو وی وونٹ بی ایبل ٹو ہولڈ ہینڈس. یہ ان کا پہلا کنسرن ہے کہ ہم ہاتھ نہیں پکڑ سکیں گے. سوشلی ان کو اتنا پرابلم نہیں ہوتا اگر لڑکی ہائٹ میں چھوٹی ہو, لیکن لڑکی کو بہت پرابلم ہوتا ہے. دس از دا مین پرابلم ود دا گرل, ناٹ ود دا بوائز. اور اس کو کمپلیکس بھی ہوتا ہے جب کوئی لمبی لڑکی آئی اس کے, اور لڑکی فیمنن فیل نہیں کرتی. اگر لڑکا لمبا نہ ہو تو لڑکی فیمنن فیل نہیں کرتی ہے, لڑکا تھریٹن ہوتا ہے لڑکی اگر لمبی ہو, کیونکہ وہ ڈومیننٹ فیل کرتا ہے کہ لڑکی ڈومیننٹ ہو جائے گی لمبی ہو. ہیلز بھی جو ہمارے کہتے ہیں نا, ہیلز ایگزسٹنس میں آئی ہے, اور جو ہیل کارپوریٹ لڑکیوں نے پہننا شروع کیے, بیسکلی ہیلز سگنیفائز پاور, ہائٹ کمز وتھ پاور. ایک سگنیفیکینس دی گئی ہے ہائٹ کو پاور کے ساتھ. تو جب یہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں لڑکی بہت ڈومیننٹ, تو اسی لیے ورک پلیسز پہ girls usually wear very long, very tall heels, so that they could look tall, اور پھر اس میں ان کی ڈومیننس ہوتی ہے کہ وہ مرد پہ ڈومیننٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ سے تو ہمیں پوچھنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے بچوں کے ساتھ شروع سے, لیکن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ونس اپون اے ٹائم جو ایک بہت موٹی خاتون تھی, اب ان کا کیا حال ہوا ہے ان کو بلا لیتے ہیں. آئے ذرا, آئے, تشریف تو لائیں آپ. Oh my God, I can't believe my eyes. السلام علیکم سارا, مجھے تو وہ دن یاد آ رہا ہے جب ہم تمہارا اتنا مذاق اڑا رہے تھے, اور آج دیکھو سوجن تھی. السلام علیکم جی. بیٹھیے. سارا بلوچ, آپ سب ان کو جانتے ہیں,
टीवी पर देखते रहे हैं, एंकरिंग करते हुए देखते रहे हैं. क्लचेज, ये डिजाइनर ये यही करती है. जब आएगी क्लच पकड़ा देगी और कहेगी तस्वीर बनाओ इसके साथ. तो ये इनका क्लच है. मैं वापस नहीं करूंगी फिर. हाँ अच्छी से लेकिन पिक्चर समझ. ओके, हाँ समझ गई. इतनी सूझ हुई थी ना. एक मिनट, सारा बलोच है और अब आपको पता चल गया होगा कि माशाल्लाह कपल हमारे साथ मौजूद है. मैं देख रही हूँ फराज एंटर हो चुके हैं. मेरा मेकअप खत्म नहीं हो रहा है. क्या बात है ना. दीदी यहाँ भी है वहाँ. मैं तो बहुत सारी तुम्हारी बात कर रहे थे. ठीक है, बहुत बहुत अच्छे तरीके से. और तुमने बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज दिया है. इतनी स्लिम ट्रिम, पहले से भी स्लिम ट्रिम हो गई. हाँ माशाल्लाह. You know why? Because of him. The credit goes to him. तो बहुत अल्लाह करे सबको ऐसे हस्बैंड मिले जो बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं. बोले गंदी चीज नहीं खानी. ओके. मैं कहती हूँ फराज मुझे खानी. चॉकलेट सब रख दी मैंने अंदर ड्रॉप के अंदर. ओके. एक दे दे प्लीज. एक दे. आज वो क्रेविंग हुई है तो एक मतलब ये देख रहे हैं मुझे फुल कि क्या नहीं तो वो हम भी देख रहे हैं. हम भी टेलीविजन तो डबल दिखाता है. आप रात को देखोगे तो पता चलेगा मुझे. नहीं अभी नहीं डबल दिखा सकता. हाँ अपना तो लूज कर लिया. थैंक यू फराज. अभी डबल भी हो जाए तो चल जाएगा है ना. जी डॉक्टर साहब, जरा डॉक्टर साहब से भी पूछे ना कि ये जो बच्चों की हाइट होती है ये माँ बाप पे ही जाती है, नाना नानी दादा दादी पे जाती है, या अलग से भी हम देखते हैं कि अम्मा अब्बा की हाइट इतनी अच्छी नहीं है मगर बेटों की हाइट बड़ी अच्छी आ जाती है. देखिए हाइट जो है ना, मतलब ये तो शायद जेनेटिकली इनहेरिटेड है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो कि मतलब पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं. मसलन ये कि कुछ डिजीज है जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाती है, क्रीनिज्म या डॉर्फिज्म जैसे कि आपको पता है. लेकिन वैसे अगर आप जनरल देखें तो जेनेटिकली इनहेरिटेड होता है, लेकिन बच्चे की जो है ना वो मिड पेरेंटल हाइट होती है. मतलब कि जैसे सारा और फराज जी. तो इनकी जो है ना मतलब इनके बीच वाली हाइट होगी. बीच वाली हाइट होगी. हमारा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज हम बहुत कंसर्न जिसको लेके वो टॉल है माशाल्लाह. उसका जो चार्ट होता है बच्चों का एक साथ पे गया है. हाँ नहीं डॉक्टर कहते हैं कि इसने अपना चार्ट क्रॉस कर दिया माशाल्लाह. इसकी हाइट बहुत बड़ी लंबी है लेकिन उसकी जो हेल्थ है वेट बहुत ज्यादा नहीं है. नहीं वेट उसका डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है. हाँ. लेकिन वो देखने में वो इतना कभी नहीं लगता है. नहीं होगा. फॉलो कर रहा है चॉकलेट बनने बेचारे. गेन वेट. मैं कंसर्न देखिए मतलब टू बी फैट बट फैटी वो अच्छा नहीं होता. अब वो हेल्दी नहीं होता. इट्स नॉट अ साइन ऑफ हेल्थ. फ्रेम बेसिकली मे हैव गॉन ऑन यू कि वो थिन फ्रेम है बट टॉल उसकी तरह आपके हस्बैंड की तरह. मतलब हेल्दी फूड होना चाहिए. जैसे कि आपको इन्होंने रोका के अनहेल्दी फूड खाने से, तो जिसके यू कैन सी द रिजल्ट. अच्छा मैं कोशिश करती हूँ कि बिकाय का जब खाना बनाऊँ तो मैं इसमें चीनी की जगह हनी डाल देती हूँ. अच्छा मैं चाहती हूँ कि ऑर्गेनिक चीजें चीनी नहीं दे. नहीं ऑर्गेनिक चीजें चाहती हूँ थोड़ा दूर रहे वो प्रिजर्वेटिव से गंदरा से. अच्छा चीनी मतलब कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन है ना, इट्स वर्स्ट कार्बोहाइड्रेट. 1 साल का हो गया. 1 साल और 2 महीने का हो जाएगा. बस वो थोड़ा स्कूल जाएगा. बहुत छोटा है. एक्सपोजर हो तो तुम रोक लेना. जरूर रोक लेना. फिर हम भी देखेंगे. हम भी देखेंगे. ये नई नई माएँ आके जो बातें करती है ना होता है ना तो इनहेरिटेंस होती है कि मतलब जीन्स जो है पेरेंट्स से वो लेता है, लेकिन उसमें फिर म्यूटेशंस भी हो जाती हैं. कुछ जीन्स म्यूटेशंस अगर हो गई तो उसमें से कोई छोटा भी रह जाता है या फिर कोई बड़ा हो जाता है. जो है वो इन्वायरमेंटल बेसिस पे होती है. हर 20 से 25 साल बाद म्यूटेशन होती है. अच्छा. तो अक्सर ये होता है कि बहुत टॉल पेरेंट्स है उनका बच्चा रियली छोटा है. ओके. कभी कभी होता है कि पेरेंट्स की इतनी हाइट नहीं लेकिन फादर एंड मदर बच्चे की हाइट बहुत लंबी निकल आई. तो ये म्यूटेशन ये एवरी 20-25 किसी ना किसी जनरेशन में 7 जनरेशन में कहीं ना कहीं म्यूटेशन टेक प्लेस कर जाती है. ओके एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है. अब ये बच्चों वाले टॉपिक से निकल के हम वापस आप लोगों पर आ जाएंगे. हाइट सारा आपने मुझे बताना है कितनी इम्पोर्टेंट होती है, और शादी से पहले का वक्त भी याद कर लेना है, अभी का वक्त भी याद कर लेना है. वैसे सारा की स्पेशलिटी है. तो जब पूछो तुम्हारी शादी कैसे हुई थी एक नई कहानी सुनाती है. झूठी कहानी हर दफा. बातें भी ला रहे हैं. हाँ और तो कुछ मिला नहीं है ना उनको झूठ फैलाने के अलावा. मैं खुद कह रही हूँ इतनी दफा मैंने उससे पूछा ये वो इतना घुमाती है ये. मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी. सी यू आफ्टर दिस. आज सुबह हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के सबसे लंबे और पस्त कदामत लोगों के बारे में. तवील कद की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अमेरिका के रॉबर्ट वैडलो का नाम आता है जो 8 फीट और 11 इंच के थे.
इस वक्त तुर्की से ताल्लुक रखने वाले सुल्तान 8 फीट और 3 इंच, पाकिस्तान के नसीर सोमरो 8 फीट 7 इंच और फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान 7 फीट 1 इंच के हैं। नेपाल से ताल्लुक रखने वाले चांद्रा बहादुर 1 फीट और 9 इंच होने के साथ दुनिया के पस्त कदामत लोगों की फहरिस्त में अव्वल नंबर पर हैं। की बात नहीं करी। वेलकम बैक। और हम यहाँ पर जी वेलकम बैक आगे। अरे वाह, क्या डॉक्टर साहब और फराज के दरमियान बिजनेस की कोई डिस्कशन चल रही थी और वो इतने उसमें महफ थे कि हम ऑन एयर आ गए। कुछ नहीं, हाँ जी मेरा ये मेरा वो है। अब सबको पता चलिए किसने। हाँ, तो आपका कारोबार जो है वो जी। आई लव दिस स्टार्स। आप बीच में ऐसी ही बात बोलती हैं जिसका कोई लिंक कहीं से 6 लोगों में किसी से नहीं जुड़ता होगा। मतलब जो लोग यहाँ बैठे हैं इनसे नहीं जुड़ेगा, जाके किचन में जुड़ जाएगा। क्या खाना है देखना है आपने? अभी आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। लेकिन उससे पहले हमारा जो टॉपिक था कि हाइट कितना मैटर करती है या लड़की की ब्यूटी में हाइट कितना रोल प्ले करती है, तो जरा सारा आप बताएंगी इस पे, कुछ आपने बताना था। यार मैं अपनी अगर बात करूं, औरों का तो नहीं पता, इट वेरीज, लेकिन आई वांटेड कि यार मेरी हाइट लंबी है तो कोई लंबा लड़का होना चाहिए शादी। इस वक्त लड़कियों की बात हो रही है, लंबे लड़के की बात नहीं हो रही। वो तो लंबे हैं ना। लड़कियां क्या चाहती हैं? लड़कियां क्या चाहती हैं? तुम्हें क्या लगता है जब तुम हाँ। इर्द-गिर्द देखती हो, छोटे कद की लड़की होती है, लंबी होती है, एक्स्ट्रा लंबी हो तो कहते हैं वो बड़ी लंबी है भाई। नहीं, हाँ, लड़कियां चाहती हैं कि उनका जो पार्टनर है वो टॉल हो। ये देखो फिर पार्टनर तो अपनी बात कि लड़कियां क्या चाहती हैं, कितनी लंबी हो। वो तो अल्लाह ने बनाया उनको, जो बना दिया। इंटरनल होती है। एवरीबॉडी वांट्स टू लुक टॉल। ये तो मैंने देखा है। जो मेरी फ्रेंड सर्कल भी है जो टॉल नहीं है, बिकॉज मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी तो मैं बहुत टॉल थी और एक और लड़की थी वो टॉल थी, बाकी सबकी हाइट नॉर्मल थी। तो वो लोग एक्स्ट्रा हील्स पहना करते थे किसी फंक्शन में। और आजकल तो बड़ा अच्छा गुड फैशन हो गया कि हाई हील्स तो जो छोटी ही होती है वो लंबी लगती है। तो हर कोई चाहता है कि हम लंबे लगे। और इनकी बात जो मैं सुन रही थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, स्पेशली आप ऑफिस वगैरह में कहीं जाते हैं, जब आप हील कैरी करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका है ना बूस्टअप होता है। ये एक नेचुरल चीज है। आप लोग भी जो घर में बैठे हैं, आप जरा हील पहन के कहीं जाएं तो आपकी वॉक चेंज हो जाएगी और कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। क्या बात है। पैरों में दर्द होगा लेकिन जैसी होगा। जिसने हील बनाई है, एक कोटेशन, आई डोंट एग्जैक्टली नो द वर्ड, तो उसने बहुत पेनफुल फेवर की लड़कियों को। लेडीज एक्चुअली आप जब चलते हो हाई हील्स में, या लंबी लड़कियां भी, उनका बैक का बहुत वो होता है। अगर बहुत लंबी लड़कियां वो हंच बैक बहुत जल्दी हो जाएगी, लड़के भी। तो उसमें होता है कि उनको अपनी कमर सीधी करके चलना पड़ता है। तो हाइट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस इन द पोस्चर। ओके, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप ट्रैवल भी करती हो, उरूज कहाँ, दुनिया का कोई हिस्सा या खित्ता ऐसा है जहाँ छोटी लड़कियां ज्यादा हैं बट दे आर ओके विद इट, लेकिन उनकी ख्वाहिश है, जिस तरह रंगत में भी है, कुछ लोग काले वो गोरे होना चाहते हैं, गोरे हैं वो सामने होना चाहते हैं, इस तरह दुनिया में जब भी आपने ट्रैवल किया अफ्रीका एंड रोमेनिया, दोनों लड़कियां बहुत लंबी थी वहाँ। हाँ, बहुत लंबी लड़कियां अफ्रीका में, बहुत 6 या डेफिनेटली 6 एज वेल, या बहुत लंबी लड़कियां, क्योंकि वहाँ पे जो मिक्स होता है ब्लैक, जो आप कहते हैं ना ब्राउन कलर है, वो जो मिक्स होता है कि एक अफ्रीकन एंड एशियन का मिक्स है, तो उनकी हाइट थोड़ी छोटी होती है लेकिन मिक्स बहुत खूबसूरत निकलता है। इसी तरह रोमेनियन लड़कियां बहुत लंबी थी एंड ब्रॉड भी बहुत थी, तो वो दे मोर यूज टू, अगर हम पाकिस्तान में ऐसी लड़की ले आए तो हम कहेंगे मर्दुमा है। अच्छा, मर्दुमा लड़की कहा जाता है। अच्छा, बहुत छोटी लड़कियां मैंने ब्राजील में देखी है, लेकिन वो कर्वी बहुत होती है, छोटी होती है, उसको हम कहते हैं ब्राजीलियन ब्यूटी। दे आर नॉट दैट टॉल बट दे आर रियली, उनको ऑलिव स्किन होती है, बहुत खूबसूरत होती है। हाइट जो है बहुत एक जो मसला है, वो मसला तो नहीं कहूंगी लेकिन मसला बना दिया गया है रिलेशनशिप के अंदर, वो सोसाइटी के बेसिस पे, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप पे ये अफेक्ट करता है। अगर कोई कहे नहीं करता तो दैट्स रॉन्ग, बिकॉज अगर लड़की बहुत छोटी है तो रिलेशनशिप में वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा, बातचीत का लेवल नहीं होगा, क्योंकि आप देखें अगर कोई लेक्चर दे रहा है या अगर आप भी इधर बैठ के दे रहे हैं, आपका सोफा थोड़ा जरूर टॉल होगा, थोड़ा ऊंचा होगा, या आपकी कमर थोड़ी सीधी होगी। पोस्चर पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर लड़की की हाइट छोटी तो कभी भी कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाएगी जर्नली। हो सकता है छोटी हाइट की लड़कियां बहुत तेज बोलती हैं, लेकिन या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोलती है, बट जर्नली वो अपने टॉल हस्बैंड के साथ या टॉल शॉर्ट हाइटेड हस्बैंड अपनी टॉल वाइफ के साथ उतना कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाएगा। अच्छा, इसी बिकॉज हाइट मेक्स अ डिफरेंस। बिकॉज अक्सर कहते हैं कुरान, तो अगर हस्बैंड से कोई बात मनवानी है तो हील्स पहन ले। और दूसरा एक मूवी स्टार वॉर्स, अगर किसी ने देखी हो तो उसमें एक सीन था जिसके अंदर कहते हैं कि जी मैं तुमसे हाइट पे बढ़ा हूं तो मैं ये जंग जीत गया हूँ। तो अक्सर कहा जाता है अगर हाइट हो तो आप जंग वो जीत जाते हो, बिकॉज यू आर ऑन टॉप।
ओके ऑन टॉप मेक्स अ बिग डिफरेंस. ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं. जरा इनको भी खड़ा करके देखेंगे कि कैसी हाइट लगती है. और डॉक्टर साहब से भी सवाल करना है कि अब बड़े ड्रिंक्स आ गए हैं मार्केट में और चीजें आ गई हैं, माएँ खाने पीने का भी ध्यान देती हैं और समझती हैं कि इनसे भी हाइट बढ़ सकती है. तो क्या कोई खाने पीने का फॉर्मूला ऐसा होता है जिससे हाइट आपकी बढ़ सकती है, या लटकने से हाइट बढ़ सकती है, या स्पोर्ट में जाने से हाइट बढ़ सकती है? ये आपने बताना है इस ब्रेक के बाद. हमारी बहू बहुत लंबी है, हमारी बेटी की हाइट बहुत अच्छी है, दुल्हा वैसा ही मिलना चाहिए. सुनने की बहुत सारी बातें ऐसी बहुत सी बातें आपने सुनी होंगी. तो आज हम लड़कियों की हाइट को लेकर यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं. हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं. उरूज हैं, डॉक्टर कमरुज़्ज़मान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पीडियाट्रिशियन है. मैं पहले चाइल्ड स्पेशलिस्ट बता चुकी थी मगर फिर बता रही हूँ. एंड सारा बलोच और फराज हमारे साथ मौजूद है. सारा ओके, क्वेश्चन कोई क्वेश्चन अच्छा, अभी एक नहीं. चीज़ मैं कहना चाह रही एक थी. सवाल हमने जो पूछा था डॉक्टर साहब से वो पूछे कि हाँ, सर. लटकने से, न्यूट्रिशन से, किसी चीज से हाइट बेहतर होती है बच्चों की? जी बिल्कुल होती है. देखिए बच्चा जो होता है वो जब पैदा होता है तो उसके सारे बोन्स या वो सारे डेवलप नहीं होते हैं, मतलब ऑसिफिकेशन नहीं होती है. बोन्स सारी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो ग्रो कर रही होती है और फिर मसल्स भी उसके साथ ही बढ़ रहे होते हैं. तो अगर हम अच्छी न्यूट्रिशन देंगे तो उसकी ग्रोथ होगी. और आप देखें कि जो मेल नरिश्ड बच्चे हैं, जिन बच्चों को मसलन अगर डाइट सही नहीं मिलती है तो उनकी हाइट भी स्टंटेड रह जाती है, उनकी ग्रोथ नहीं होती है. सिर्फ उनके मतलब के वैसे देखने में तो सूखे होते हैं. मसलन कि अगर आप कोई कहत ज्यादा इलाके की कोई आप किसी बच्चे को ले लें और आप एक शहर के बच्चे को दें तो कंपेयर करें आपको उसमें लगेगा. इसलिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है. तो हमें वो न्यूट्रिएंट्स देनी चाहिए बच्चों को जो कि उसके नशोनुमा में उसके हर सेल्स को जो ग्रो करने में मदद करे. मसलन के ब्रेन सेल्स एंड आपके न्यूरॉन्स को डेवलप करे. उसके बाद जो मसल सेल्स है उसको डेवलप करे. और उसके बाद फिर जो बोन है, कनेक्टिव टिश्यू जो है उसको डेवलप करे. तो उससे हाइट भी बढ़ेगी और उसकी जो है मतलब के आईक्यू लेवल भी अच्छा होगा, इंटेलिजेंस भी बढ़ेगा और वो बच्चा जो है अच्छा ग्रो करेगा. तो उसके लिए बहुत ही सही किस्म के बैलेंस डाइट देना चाहिए जो कि न्यूट्रिएंट्स, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हों. ना कि आपका सवाल ये था जो आपने ब्रेक से पहले पूछा था कि जो एनर्जी ड्रिंक्स या सोडा या जो सॉफ्ट ड्रिंक जिसको कहते हैं वो ये नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे बहुत नुकसान होता है. और एनर्जी ड्रिंक्स तो वैसे भी नहीं देनी चाहिए जो हमारे बच्चे आजकल पी रहे हैं, समझते हैं कि शायद उससे कोई बदल होती है. अच्छा, आपको पता है जी बिल्कुल, वो बहुत 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 नुकसानदेह है. बच्चे को खाने पीने से ज्यादा वो तो हर कोई ध्यान रखता है कि आप खाना पीना खिलाएं. शी इज वेरी कंसर्न, ही इज देयर टू एजुकेट यू. वन थिंग यू शुड नो, आपका बच्चा हंच बैक होके ना बैठे. अगर आप चाहते हो उसकी हाइट निकले बाहर, वो जितना यूं होके बैठेगा उसकी हाइट दबती जाएगी. आप बच्चे को हमेशा से कहे बड़े बूढ़े कागज कमर सीधी करके बैठो, कमर सीधी करके बैठो, सर ऊपर करके बैठो. इज बिकॉज आपकी कमर जो है ना वो यूं मुड़ना. एज के साथ देखेंगे आप कितना भी लंबा आदमी हो, अगर वो 60 70s के बाद देखें वो छोटा होता है, मतलब कद कम हो जाता है. अब वो लोग कहते हैं मैं तो घिस गया हूँ एज के हिसाब से. बेसिकली क्या होता है वो ऊपर से लिटरली कहते हैं मैं एज के हिसाब से घिस गया हूँ नीचे से. बट ये होता है कि उनकी कमर जो है ना पीछे मुड़ रही होती है. तो आप अपने बच्चे का पोस्चर का खास ख्याल रखें, स्पेशली जब वो लिख रहा हो. हम लिखते अक्सर यूं हो गए, जब लिख रहा हो तो कहीं कमर सीधी करके रखें, तो आपके बच्चे की हाइट कम नहीं होगी. अच्छा हाँ, पहले आप बनाती है, बिल्कुल बनाती है और ज्यादा इसका जब मूड होता है तब बनाती है वैसे. अच्छा हाँ, और अच्छा तब बनाती है जब इसका मूड हो. अच्छा, वो अच्छा बनाती है खाना. अच्छा, और बाकी आप बिल्कुल बोर नहीं होते इसकी बात? बिल्कुल नहीं. एक टाइम आता है कि बंदा फिर कहता है यार मैंने उसको कहता खामोश हो जाओ यार प्लीज, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए खामोश हो जाओ. 5 मिनट के बाद सुन लेती है, नहीं गुस्सा करती है उसको तो यार 5 मिनट नहीं खामोश रह पाती ना, फिर 2 मिनट के बाद बोल जाती है. अच्छा, आज आप लोग यहाँ आ रहे थे तो हमारी शेफ ने कुछ खास बनाया, आप इनसे सलाम दो. अच्छा, आपने क्या किया? हमें मिल लेते हैं. अच्छा, आपने क्या बनाया? पराठा रोल? नहीं, मैंने शौरमा बनाया. वाह, शर्मा. वो भी खाएगी ना? हाँ, सही है. हाँ, खाऊंगी, क्यों नहीं खाऊंगी, खाऊंगी. खाने का तो फराज को पेट फूल है, वो तो नहीं खाएंगे. क्यों? अच्छा, मैं नाश्ता नहीं बना के लोग बना खाया. ये इसका गुस्सा बोल रहा है जी. सुबह में नाश्ता बनाया और उन्होंने वो खाया नहीं, तो इसलिए कह रही है पेट फुल है. बट ये कि नहीं, ये हम मैं जरूर खा के देखूंगी, मजा आएगा मुझे. ये मिस करते हैं शहर लाहौर का भी अच्छा होता है, बट कराची का क्योंकि मार्केट में जो शवरमाज मिल रहे हैं वो बहुत ही पैटनिंग होते हैं और वो भी खाने लायक नहीं होते हैं. तो ये फराज, आप कितने अरसे से ये सारा डाइट कॉन्शियस जिम? मैं शुरू से ही हूँ. अब तो फिर मैं नहीं करता हूँ, वर्कआउट कभी कभी कर लेता हूँ, लेकिन ये कि वैसे शुरू से ही हूँ. अच्छा, शुरू कितना? शुरू मतलब कि नहीं, तकरीबन कोई 8-10 साल से.
अच्छा 8-10 साल से आप और फराज अगर जिम नहीं जाते तो घर में कर रहे होते हैं एक्सरसाइज, मेरी तरह नहीं है कि मैं छुट्टी मारी तो छुट्टी नहीं, कुछ भी नहीं किया। नहीं, ये जो बड़े कंसर्न होते हैं और अपनी डाइट बड़ी तरीके से देखते हैं कि मैं क्या क्या खाऊं। क्या खाते हैं आप लोग? मतलब ये सारे लोग तो सोच रहे हैं शायद कोई अंडे और मुर्गी और ये सब। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या नहीं खाता हूँ। वो सिर्फ ये है कि एक उसमें जो बाजार के जो नान होते हैं वो नहीं मैं खाता हूँ, और कोल्ड ड्रिंक्स मैं नहीं पीता हूँ, बर्गर्स मैं नहीं खाता हूँ, और ठंडा पानी नहीं पीता। बस ठंडा और मीठा भी बहुत कम खाता हूँ। चाय में नहीं चीनी पीता मैं, विदाउट शुगर, और सब खाता हूँ। हाँ, जब ये सारी चीजें और ये अच्छे मेहमान है कहीं जाते और जब खाता हूँ तो बहुत ज्यादा खाता हूँ, लेकिन मैं इनमें से कोई चीज नहीं खाता हूँ। जो हमारी शादी हुई नई नई ताया वो कहते हैं आप लोग जब भी हमारे घर आते हैं हमारा दामाद जो है वो चाय नहीं पीता, ना वो ठंडा पानी पीता है, ना वो ठंडी कोई बोतल पीता है, क्या दें उसको हम? बर्गर वो नहीं खाता, जो कैसा मेहमान है ये, क्या करें? मैंने कहा कुछ नहीं, चाय में चाय नहीं के उनको इतना शौक नहीं है चाय का, और बोतलें भी नहीं पीते, तो आप खुद कुछ बना के अंडे बॉईल करके ले जाया करें टिफिन में, और मेहमान के घर जाके वो खोल जाकर आप लोग परेशान ना हो। ये खाएंगे। एक फॉर्मूला और है, वो ये कि जब भी बारबेक्यू हम लोग खाते हैं कबाब और वो कभी भी साथ नान ना खाएं। अच्छा, सादा खाएं। हाँ, ये अच्छी बात है। डॉक्टर, ये सारी बातें हो गई, आपने कुछ पूछना है मुझे? डॉक्टर साहब से पूछिए डॉक्टर साहब से हम चलते हैं। हाँ जी, मुझे हाइट का ही पूछना था कि बाज बच्चे जो होते हैं उनकी जैसे रह जाती है हाइट, तो लड़कियों में क्या एज होती है कि कब तक हाइट बढ़ती है उनकी ना? देखिए, जैसे मैंने अभी कहा था कि बोन्स जो हैं वो डेवलप नहीं होते हैं, तो एक मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद से जो ये ऑसिफिकेशन कहलाती है, तो डिफरेंट बोन्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते हैं, उसके बाद जो है फिर वो उसकी हाइट एक अटेन होती है। तो यानी मैक्सिमम जो है 20-21 ईयर्स तक होती है। अच्छा, लड़कियों की और लड़कों की भी 22 साल। तो इसलिए जी हाँ, लॉन्ग बोन्स जो है वो सारी, मसलन अब फीमर है लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, तो इसमें ये आप एकदम से एक बच्चा जो पैदा होता है आप देखें उसकी पूरी एक बोन नहीं होती है फीमर की, वो आहिस्ता आहिस्ता करके ये बोनी प्लेट्स और उसके साथ में यानी एक छोटा सा पीस यहाँ होगा, फिर छोटा सा यूं होगा, आहिस्ता आहिस्ता यूं करके जुड़ेगा, तो वो हाइट जो है ना आपकी, दैट इज द फाइनल हाइट। ओके, तो उसमें मतलब कि उससे फिर आपकी जो है हाइट अटेन होती है। ठीक है, इसलिए मैंने इसीलिए कहा था कि अगर आप अच्छी डाइट देंगी, गुड न्यूट्रिएंट्स देंगी, तो उससे क्या होगा कि उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, बोन्स अच्छे बनेंगे। तो अगर बोन्स में फिर जो है तो फिर हाइट अच्छी होगी, फिर हाइट अच्छी होगी। अच्छे होंगे तो अच्छा। उरूज, अब आपने हमें इस हवाले से बताना है ब्रेक के बाद कि अगर हाइट चलेंगे आपके हाथ में इतना नहीं है ना, अब वो लोग जो आज हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं या जिनके बच्चे एक मखसूस हाइट उनकी हुई, आगे बढ़ी नहीं, इस कॉम्प्लेक्स को कैसे ओवरकम करना है, इस फीलिंग से कैसे बाहर आना है? ठीक है, क्योंकि ये चीज जितना आप फील करते हैं लोग उतना आपको फील करवाते हैं, तो इससे बाहर कैसे आना है, इसे कॉम्बैट कैसे करना है, कॉन्फिडेंट कैसे रहना है? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और अब हमारे प्रोग्राम का कुछ ही वक्त रह गया है, तो वो लड़कियां जिनकी हाइट उनके हिसाब की नहीं है, बहुत सारे लोग हैं बड़ी अच्छी हाइट होती है, 5'2", 5'3" में भी बड़ी अच्छी लग रही होती है, मगर होता है नहीं 5'5" नहीं है, 5'6" नहीं है, और वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हुए अपनी पर्सनैलिटी को खराब कर देती है। उनके लिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आप कुछ बताएं। टर्म आई है पटीट जो कहते हैं, अब हम सोचते पटीट पर टर्म है जो बहुत पतली लड़कियां होती है, बट इट्स अबाउट फ्रेम एक तो कम और हाइट कम हो। ओके, तो एक टर्म है, एक बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, तो आप पटीट में हो सकता है आप हाइट थोड़ी छोटी और बहुत पतले हो। ये अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, मेरा कभी कभी शैटर्ड हो जाता है कॉन्फिडेंस कि मेरी हाइट बहुत लंबी है, तो जब मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मैं अक्सर नीचे होकर बात कर रही होती है, मेरे वालिद की हाइट थोड़ी मुझसे कम है, तो उस पर हमारा जब हम बात कर रहे होते हैं, वॉट यू हैव टू रियलाइज कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या चीजें आपके अंदर है, एक्सेप्ट हाइट जो हाइट को हाईलाइट कर शेडो कर सकती है। आप अगर आपकी पिच बहुत स्लो और हाइट छोटी है आवाज की, तो अपनी पिच ज्यादा बढ़ा दें, सो दैट आप रीच आउट कर सको। अच्छा, दूसरा ये कि आपको एग्जाम्पल, जब आजकल तो खैर सेट हो गई एग्जाम्पल टॉम क्रूज और निकोल किडमैन की। टॉम क्रूज इज शॉर्ट एंड हाइट, निकोल किडमैन वाज टॉल, तो ये एक हो गई कि भाई एक स्टीरियोटाइप हुआ हुआ है सोसाइटी के अंदर कि जी लंबी लड़की होगी तो वो बहुत अच्छी मॉडल बन सकती है, लेकिन वो बहुत अच्छी कुक नहीं बनेगी। दिस इज बेसिकली अ मेंटालिटी। यस, बहुत लंबी लड़की बहुत अच्छा खाना नहीं बनाएगी। आई एम एन एक्सीलेंट कुक,
as far as میں بھی اب صحیح کھانے بنا یہ ساری اسٹیریوٹائپس ہیں. یہ اسٹیریوٹائپس کو یہ سوسائٹی کے اندر ہوتی ہے, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. وتھ ٹائم چیزیں چینج ہو رہی ہیں, لیکن اپنا کانفیڈنس کیسے بڑھانا ہے, اپنی آپ ڈیفینیٹلی ایگزامپلس پڑھیں, لوگوں کو پڑھیں. اگر آپ دیکھ رہی شارٹ ہائٹی لڑکیاں اتنی نہیں ہیں, تو بہت ساری پٹیٹ لڑکیاں جو ڈوئنگ امیزنگ ان دا ورلڈ, رائٹ. تو آپ ان کو دیکھیں, بہت سارا آپ دیکھ. اچھا دوسری بات ہے کہ جو آپ کے والدین ہیں, یہ چیز شروع ہوتی, کوئی بچہ 60 سال کے بعد کوئی چیز چینج نہیں کر سکتا. اگر والدین تم کالے ہو, تم چھوٹے ہو, تمہارا بھائی بڑا ہے, یہ چکر جو ہے نا یہ آپ کے والدین ہی ٹھیک کر سکتے, جن کی پرسنالٹی بن گئی. دینی تھراپیز, لیکن اپنے بچوں کو کمپیئر کرنا چھوڑ دیں. آپ نے سوسائٹی میں بتایا لمبی ہائٹ ہے, اگر اپنے بچے کو بار بار کہیں گے تم ناٹے ہو ناٹے ہو ناٹے ہو, وہ بیسک کانفیڈینس لیول جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور بار بار ہی کوشچن وہ کرنا بچہ جو ہے اس میں مطلب کہ گرو کرنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ آپ ختم ہو جائے. اور بار بار اس کے سامنے کوشچن پوچھنا کہ یہ تو اتنا کالا ہے, اس کو گورا کیسے کرے, یہ تو اتنا چھوٹا ہے, اس کو لمبا کیسے کرے, اتنی لمبی ہے اس کی شادی نہیں ہوگی, بڑی کی ہوگی چھوٹی کی نہیں ہوگی. یہ دیکھیں ہائٹ کا کمپلیکس آتا ہے سوسائٹی سے. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بچی کے اندر یہ کمپلیکس نہ ہو یا بچے کے اندر نہ ہو, فرسٹ آف آل یو اسٹاپ ٹاکنگ. اینڈ سیکنڈلی بچی اور بچے کے اندر ڈیفینیٹلی جب ایک ایج بڑی ہو گئی ہے تو اس نے اپنی خود کی سیلف تھراپی کرنی ہے. اس کی کوئی ایسی کوئی میں سائنس نہیں بتا سکتی کہ وہ یہ کرے تو ٹھیک ہو جائے گا. اس نے ایگزامپلس دیکھنی کہ ٹھیک ہے شارٹ ہائٹڈ ٹام کروز شارٹ ہائٹڈ, اور اس کی جو پازیٹیو ہیں پازیٹیو آپ بار بار ہائی لائٹ کریں. اکثر یہ خیر فزیولوجیکل ہے, کوئی اس کو وہ نہیں کرے گا, ہم سیٹ نہیں کر سکتے. بٹ یو نو آئنسٹائن کی ہائٹ چھوٹی تھی, رائٹ. آپ نیپولین کی ہائٹ چھوٹی تھی, رائٹ. جس طرح میں نے کہا ٹام کروز کی ہائٹ چھوٹی ہے. تو ہر شعبے کے اندر چھوٹی ہائٹ والے بڑے کمال کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں, لمبی لڑکیوں کو بھی کمپلیکس ہو جاتا ہے. ایسی جگہ جاتی ہے نا جہاں سارے چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں, اس قدر کمپلیکس ہوتا ہے کہ میں نے آج ہیل کیوں پہن لی تھی. اور لوگ مجھے کہتے تم لمبی ٹار گھوڑی کی طرح ہیل پہ چڑھ گئی. جلدی کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں بہت پریسائز بات کروں گی, وہ یہ کہ اگر آپ ہیل پہن رہے ہیں تو پوائنٹڈ ہیل تھی کہ تھوڑا پین دیتی ہے, لیکن اگر آپ ویجز پہنتے ہیں تو وہ تھوڑا کم فرائی ہوتا ہے, تو آپ ویجز پہن سکتے ہیں. اور اگر آپ کے ہسبینڈ کی ہائٹ چھوٹی ہے, آپ کی ہائٹ ٹال ہے, کوئی بات نہیں, اس کو انجوائے کریں. اٹس آل رائٹ ڈوڈ, انجوائے یور لائف. آپ کچھ کہیں گے فراز اس بارے میں کہ وہ ہسبینڈ جن کی شادی ہو گئی, پہلے تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور تھوڑے عرصے بعد یاد آتا ہے کہ یار اس کی ہائٹ مجھ سے کم ہے یا اس کی ہائٹ بالکل میرے برابر ہے, اور کمپلیکس میں آتے ہیں. اینی تھنگ فار دیم؟ دیکھیں شادی سے پہلے یہ چیزیں دیکھنی چاہیے, اور شادی کے بعد جو ہے نا یہ اس چیز کو نیگلیکٹ ہی کرنا چاہیے اگر آپ بعد میں ساتھ ہوتے ہیں. اور شادی کے بعد سب کے معاملات ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, نہیں ایسا کیوں فراز؟ نہیں. میں آپ مجھے ایک بات سچ سچ بتائیں, لو میرج ہو, ارینج میرج ہو, کیسی بھی میرج ہو, شادی کے بعد معاملات ایک ہی جگہ ہوتے ہیں. صحیح بات ہے, ایسا ہی ہے. Everybody is well done. ٹوٹلی. ہاں, ایوری بڈی از ویل ڈن, ایوری ہسبینڈ از ویل ڈن. یہ سارے ہسبینڈ کہتے ہیں, چاہے اسے اردو میں کہیں کہ تم نے مجھے پکا دیا میں پک گیا, یا پھر انگریزی میں کہیں کہ ویل ڈن ہو گیا, تو کہتے سب یہی ہیں. تو شادی کے بعد معاملات ایک ہی جیسے. لیکن خیر یہ سب تو مذاق میں بات ہوتی ہے, مگر جیسے جیسے رشتہ آگے بڑھتا ہے, سال آگے بڑھتے ہیں, آپ کی آپس کی بانڈنگ آگے بڑھتی ہے, اور وہ اس فینٹیسی یا اس محبت سے بہت آگے چلی جاتی ہے. تھینک یو سو ویری مچ. آپ لوگ آئے, آپ سیفلی ٹریول کریں, لاہور جائیں اور ہمارا شو دیکھیں اور ہم سے کنیکٹڈ رہیں, پھر آپ سے ملاقات کریں گے. تھینک یو سارا, تھینک یو روج, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اور آپ بھی شاید ہمیں کبھی اسی صوفے پہ ایسا نظر آئے, اس کا ہمیں انتظار ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. اینڈ ہماری جو شیف ہیں وہ وہیں سے مسکرا رہی ہے. سارا آ جائیں. ہاں میں آ رہی ہوں. آ جائیں, باقی بھی عروج آ جائیں, آف کر دیں. ہاں جی. تو یہ جو ہمارے پیارے پیارے رول ہیں جو کہ سارا نہیں کھائے گی, یہ ڈائٹ پتلے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کم کھاتے ہیں, ہے نا. بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے, ہم اسے انجوائے کریں گے. آپ اس کی ریسیپی کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ پیج پہ دیکھ سکتے ہیں میرے, اور آج کے پیج پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یعنی آپ کھانے اچھے بناتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے ان کی ہائٹ اچھی ہے. مگر میں ایک بات کہہ رہی ہوں, لڑکیاں نہیں, میں صرف ایک بات کہوں گی کہ اگر آپ کے اندر کانفیڈینس ہے تو لمبے ہو یا چھوٹے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ان میں بہت ہے, اور وہ آپ ہی نے دیا ہے. خیر, تو اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے, اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں آپ کو دی ہیں ان کو انجوائے کیجیے, کیونکہ آپ کو بہت ساری چیزیں اللہ نے بہت اچھی دی ہیں. وہ کسی ایک چیز جو لوگوں نے آپ کو جس کی طرف اٹینشن دلا دی ہے کہ یہ خراب ہے, اسے آپ اوور کم کر سکتے ہیں. سب کچھ پاسبل ہے. اپنا خیال رکھیے, آپ سے پھر ملاقات کریں گے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.